how one can give his or her testimony. Have two kinds of situation I told you about. दो तरीके होते हैं, यानी First situation is पहला सिचुएशन ये है, when pastors tells you to give your testimony. पहला सिचुएशन ये है कि अगर आपको आपके अगुवे जो है वो कहते हैं आपको गवाही देने के लिए, Okay, so what happens to you? क्या होगा तब, क्या होता है आपके जीवन में? Okay, you've been worried. आप सोचने में लग जाते। What should I share? मैं किस बात को मैं बताऊं, Okay, and how I should share? और मैं कैसे बताऊं, And how long I should take to share my testimony? और कितना समय लूं मैं इनमें अपनी गवाही बताने के लिए। Okay, the first situation is when pastor tells you to do and you are worried about how to give testimony. और जब आपको पास्टर कहते हैं कि गवाही दो, तो उस समय आप क्या हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो। Okay. And always you will tell, okay pastor, no, I cannot share my testimony. You give me another Sunday, maybe you tell me before that so that I can share my testimony. फिर हम पास्टर को कहते हैं अभी नहीं पास्टर जी, मुझे अगले संडे देना कि तब मैं तैयार होकर मैं तब बताऊंगा अपनी गवाही। Okay. The another situation is और दूसरा सिचुएशन ये है, you have faced in the church. कलीसिया में पहले से ही देखा है। Okay, what happens? क्या देखा है? When pastors tell somebody to share the testimony, किसी पास्टर अगर कहेंगे कि उनको गवाही अपना बताने के लिए, and pastor will say that after testimony we'll have word of God. और पास्टर कहेंगे कि अभी गवाही के बाद परमेश्वर का वचन का प्रचार होगा। Okay, so one person stand up, he or she whatever, और एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे अपनी गवाही देने के लिए, and keep on sharing things and people get bored. और वो व्यक्ति बस बोलता रहेगा। And what he will say? और फिर उसके बाद क्या होगा? My testimony is so big. और फिर बोलोगे कि मेरी ये गवाही बहुत लंबी है, बड़ी है। And he or she keeps on telling about I went there and I went by rickshaw and rickshaw was like that, like so many details and what is not needed in the testimony. और गवाही ऐसे देते कि छोटी विषय भी मैं रिक्शा पे चढ़ा, मैं वहाँ गया, ये गया, फिर एक बड़ी सी लंबी कहानी है वो बताना शुरू कर देता है। That is not needed. और वो जरूरत भी नहीं है। Nobody wants to listen that. कोई वो बात सुनना नहीं चाहते। And what happens? Pastors given them just like testimony. I will say like how much time you should take. और फिर उसके बाद पास्टर उनको बताते कि कितना समय तुम्हें लेना है। Okay, he will tell okay you have 5 minutes time and you share the testimony. और आपके पास 5 मिनट का समय है, बस आप 5 मिनट में आप अपनी। And the person keeps on telling for 20-25 minutes. और वो व्यक्ति 20-25 मिनट अपनी गवाही सुनाता जाता है। And even it's the time of its. Okay. वो जो प्रभु का वचन का भाग है उस समय को भी वो ले लेता है। And after sharing 25 minutes, what he or she will say. और फिर वो 25 मिनट बताने के बाद क्या बताता है? Okay. Testimony. और फिर वो अपनी गवाही को पूरा नहीं कर पाते। And say because limited time I couldn't share complete my testimony. और फिर ये भी बता देता है कि भाई थोड़ा समय था इसलिए मैं थोड़ा ही अपनी बात बता पाया करके, इतना लंबा बताने के बाद। Okay, so what happens? क्या होता है? After sharing 20 minutes, her or him testimony is not finished. और फिर 20-25 मिनट गवाही सुनाने के बाद भी वो कह रहा है कि अब मेरी गवाही खत्म ही नहीं हुई। So what the word of God says, Acts chapter 1 verse 8. और हम परमेश्वर के वचन में देखें प्रेरितों की पुस्तक का पहला अध्याय का 8। But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. और हम 8 में क्या देखते हैं प्रभु के वचन में? ये कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होगी। Okay, so when the Holy Spirit will come, you will be my witness. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Okay, first of all you need to think that you are a witness.
पहली बात हमें सोचना है कि हम क्या है, हम गवाह हैं। And what you have to do? और हमें क्या करना चाहिए? You have to give your testimony. और हमें अपनी गवाही देनी चाहिए। What is testimony? गवाही क्या है? Testimony is what your life was गवाही ये है कि हमारा जीवन कैसा था and how Christ changed your life. और मसीह ने कैसे आपके जीवन को बदला है। Okay, so especially like you should be always be able to stand and testify what God has done in your life. और बस हम खड़े होकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया उस चीज़ का गवाही हमें देना चाहिए। Do you need long preparation to give testimony? क्या आपको बड़ी लंबी मीन्स आपको लंबी Whenever like somebody asks you about testimony, you should be always ready to share the testimony. जब भी कोई व्यक्ति आपको अपनी गवाही सुनाने के लिए कहता है तो आपको हमेशा तैयार होनी चाहिए अपनी गवाही सुनाने के लिए। And the thing is like what should be there in our testimony? और जब हम गवाही देते हैं तो हम गवाही में क्या क्या बातें होनी चाहिए? At your home you read Acts chapter 26. और जब आप अपने घर में पढ़िए कि प्रेरितों की पुस्तक का 26 का, There you find how Paul testifies in front of King Agrippa. और वहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कैसे राजा अग्रिप्पा के सामने वो अपनी गवाही को कैसे पेश करता है। So there are three parts in any testimony. और उसमें हमेशा तीन भाग होते हैं गवाही में। Okay, first part is पहली पार्ट ये है, भाग ये है how you were living your life without knowing Jesus Christ. पहले कैसे जीते थे अपना जीवन जब मसीह को आप नहीं जानते थे। And the second part is और दूसरा भाग ये है how you came to Christ और दूसरा भाग ये है कि आप कैसे मसीह में आए and how he changed your life. और तीसरा भाग No, the second part. और दूसरा भाग में कि वो कैसा आपके जीवन को बदला है। And the third part is और तीसरा भाग ये है after receiving Jesus Christ, how is your life? और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आपका जीवन कैसा है। Okay, so I told you three parts. और मैंने तीन भागों के विषय में बताया है। Okay, so how much time you should take to share each part? और कितना समय लेना है आपको एक एक बात को बताने के लिए? Your testimony should be maximum. How much minute you think? आपकी गवाही कितने मिनट की होनी चाहिए आप बताओ? Maximum. मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5. That is maximum. और 5 मिनट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। But I have gone to many churches throughout India. मैं बहुत जगहों पर बहुत सारी कलीसियों में मैं गया हूँ। I heard many testimonies. बहुत सारी गवाहियों को मैं सुना हूँ। But nobody is ready to finish in 5 minutes. और कोई भी ऐसा नहीं था जो गवाही से 5 मिनट में खत्म कर दे। Everybody, whenever pastor tells somebody to share testimony, he or she takes like longer 20, 25 minutes, 30 minutes, and after that he says, no, I did not have much time to share. और जब भी पासवान कहते थे कि गवाही अपने गवाही बता दो, तब वो व्यक्ति क्या है कि वो 5 मिनट से अधिक 20-25 मिनट गवाही सुनाता रहता है और फिर उसके बाद भी कहता है कि अभी भी मेरी गवाही बाकी है। Okay, I told you about the three parts. और मैंने तीन भागों के विषय में बताया। So, how much time the first part will take? और पहला भाग का कितना समय आपको लेना है? 1 minute. एक मिनट का समय। Mostly what we do. मैं बहुत बार क्या करते हैं? How was my life? We take much time to that. और कैसा मेरा जीवन था उसके बारे में बहुत समय ले लेते हैं। So nobody wants to know the main detail. और कोई नहीं जानना चाहता कि आप पहले कैसे जिए थे। They want to know how was your life. बस वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा था। Okay, use some words that explain how was your life. और कुछ शब्दों का इस्तेमाल करो जो आपका जीवन कैसा था। Just like for example, एक उदाहरण के लिए, I was a drunken. और सोचो आप एक ड्रंकन हैं। And because of that, my family faced many problems. और उसके वजह से मेरा परिवार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। Just imagine when I share my testimony, I am a drunken, and because of that, my family faced many problems. अगर
आप अगर बोलोगे कि मैं एक पियक्कड़ और उसके वजह से मेरा परिवार इन सारे समस्याओं से जूझना पड़ा उन्हें। Okay, so you know what the drunken looks like and how the drunken family face the problem. और आप जानते हो कि एक पियक्कड़ कैसे दिखता है और उसके बाद उसका जीवन कैसा, उसका परिवार में क्या परिस्थितियाँ होती है। No need to tell all the details, long details. Okay, so use the words like that. They must know that this person was like that. और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो इस शब्द से पता चल जाए कि उनका जीवन कैसा था पहले। No need to say, okay, I was drunkard. Every morning I used to go to that bar, and like I did not have money. I used to borrow from people. They all know what the drunken do. और ये जरूरत नहीं कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा कहे कि मैं सुबह उठ के मैं उधर दुकान में जाता था, फिर मैं पैसे इधर से लेके आके मैं लेता था। मैंने सबको पता है एक पीने वाला, एक शराबी कैसा उसका जीवन हो सकता है। I was not helping to the family. Kind of so many things. I borrowed money from many people. They all know these things. और मैं सबसे पैसे लिया हूँ, मैं इन सब पैसों से मैं सिर्फ पीता तो वो सब बातें सब जानते हैं कि एक शराबी के जीवन कैसा होता है। So within 1 minute you should be able to share what you were before Christ. और 1 मिनट के अंदर आपको बताना हो चाहिए कि आपका जीवन पहले कैसा था। Choose the word which explains everything. और ऐसे एक शब्द को ले लो और उस शब्द के द्वारा वो आपकी पूरा जीवन का वो कैसा जीवन आप व्यतीत करते उसके बारे में वो बयान कर सकते हैं। For example, I was adulterous. आप उदाहरण के लिए सोचो कि व्यभिचार के बारे में। No need to tell all the details, okay? और उस व्यभिचार के बारे में पूरा डिटेल बारे में बताने की जरूरत नहीं है। So many times what happens? बहुत बार क्या होता है, The first part takes all the time. और जो पहला भाग होता है पूरा समय ले लेता है। Okay, I was kind of person. और इस तरह का मैं एक ऐसा व्यक्ति था। I had so many girlfriends. और मेरे बहुत सारे I had so many boyfriends. मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, मेरे सारे गर्लफ्रेंड्स थे। Okay, it seems that you were enjoying much before Christ after coming to Christ. इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि आप मसीह में आने से पहले बहुत अपने जीवन का आनंद उठाया। After coming to Christ, there is no way to enjoy your life. और फिर ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह में आने के बाद एंजॉय करने का लाइफ ही नहीं है। Because what happens that everything, like you tell all the details, then after that you don't have time to share like how Christ changed your life. और जब ये सारी बात बोलने के बाद आपके पास समय नहीं होता कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन को कैसे बदला है। Okay, the first part I've shared with you. और वो जब पहला भाग मैंने आपसे शेयर किया है, How was your life before coming to Christ? आपका जीवन कैसा था मसीह में आने से पहले आपका जीवन। You just take 1 minute. और उसके लिए 1 मिनट का ही समय है। The second part is और दूसरा भाग ये है how you came to Christ. और आप कैसे मसीह में आए। This is the most important part people want to know. और ये जो दूसरा भाग है वही लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे आए प्रभु में। So how much time we should take to share these things? और उसके लिए कितना समय लेना चाहिए? 3 minutes. 3 मिनट लेने चाहिए। In this part only you are sharing everything whatever people wants to know. और इसी भाग में, ये दूसरे भाग में ही आप सब कुछ अपने जीवन के बारे में गवाही सुना रहे हो जो लोग सुनना चाहते हैं। Okay, so this is the part, very important part. और यही जो भाग है वही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। Okay, so here also no need to tell all the details. और यहाँ पर पूरा आप विवरण और विस्तार से नहीं बताने की जरूरत है। When first time I started following Christ, और जब मैं पहली बार जब मसीह के पीछे चलने लगा, I used to tell all the details how I came to Christ. और पूरा डिटेल No, I used to tell all the details how I came to और Christ. मैं तब उस समय सारे विवरण देता था कि मैं कैसे प्रभु में आया था। Somebody told me about crusade, और कोई मुझे किसी क्रूसेड के बारे में बताया। and I went with my father like to a bus stand, फिर मैं बस अड्डे पर चला गया। and I found a like evangelist there. मैंने एक सुसमाचार प्रचार करने वालों को, He told me like that. और उन्होंने मुझे ये बोला था। So much of details. Even that time my pastor told me, you said
long testimony. और फिर उस समय मुझे पास्टर कहते थे कि तुम बड़े-बड़े गवाही देते हो। So I used to think like, pastor is not right. और फिर मैं सोचता था कि हाँ, पास्टर सही नहीं है। I used to express so much और मैं कितनी सारी चीज़ों को मैं बताता था that was not required. और वो सब चीज़ें ज़रूरत नहीं थी। Long testimony is not required. और बड़ी-बड़ी गवाहियों का लंबी ज़रूरत नहीं है। If you say my testimony is so long, अगर आप कहोगे कि मेरी गवाही इतनी लंबी है, it is because you are telling all the details, फालतू का details. Okay, we don't want that. और आप इतने सारे चीज़ों के बारे में बता रहे जो ज़रूरत नहीं है। Okay, sometimes if you have financial needs, we tell, okay, my mama came and like he works as engineer, and no need, nobody wants to know how, like, who is your mama and what he is doing. और जब आप फाइनेंस के बारे में बता रहे हो कि मेरे उसके विषय में कि मेरे मामा आए, मेरे मामा ने इंजीनियरिंग किया, मेरे मामा ऐसा है, उनके विषय में इतना बताने की जरूरत नहीं है। That takes a lot of time. और उसके द्वारा वो लंबा समय ही ले लेते। Just share. सिर्फ आप अपनी बात को बताना है। For example, एक उदाहरण के लिए, you were depressed, आप उदास थे, डिप्रेस थे, you were in physical problem, आप एक शारीरिक समस्या में थे, you are like demonic possession, और आपके ऊपर दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ काम करती and थी, somebody informed you और किसी ने आपको बताया, that Jesus Christ can change your life. और किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है, And you just believe that one, और आप उस बातों पर जब उन्होंने वो बातें बताई उस पर विश्वास किया, and you read the word of God, or you heard whatever you read or heard whatever. और शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो प्रभु का वचन, Okay, so I heard or read word of God, और मैंने सुना या पढ़ा प्रभु के वचन को, and this is the part you can share one or two verses which changed your life, and it's helped you to come into Christ. और तब एक और दो वचनों को आप सुना के ये वचन आपके जीवन में किस तरह से प्रभावित किया है, उन वचनों के बारे में आप बता सकते Okay, this is the verse. ये अध्याय है, Okay, this is the chapter verse, like it changed my life when I read ये it. अध्याय है, ये पद है, ये पदों के द्वारा, अध्याय के द्वारा मेरे जीवन में बदलावट आई है। Okay, so what you have to share in second part? और दूसरे भाग में क्या आपको बताना चाहिए, How you came to Christ. और आप मसीह में कैसे आए। 3 minutes. उसके लिए 3 Don't take so long. और बहुत लंबा मत लेना है। Okay, the third part is, और तीसरा भाग है, how is your life after coming to Christ? अभी आपका जीवन जब प्रभु मसीह में आ गए तो आपका जीवन कैसे आप व्यतीत कर रहे हो। How like your life is joyful? क्या आपका जीवन आनंद से भरा है, How you are truthful, now people can trust you? और आप एक सच्चे इंसान बन गए और लोग आपके ऊपर भरोसा कर And you रहे had हैं। so much of physical problem, now you are healed? और जब पहले था कि आप शारीरिक रूप से बहुत सारे कमजोरी थी और अब आप चंगे हुए हो। Okay, 1 minute. और उसके लिए एक मिनट का समय। So this all testimony all together should take not more than 5 minutes. और ये सब बातें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। Use some words which speaks all the details before you tell the details. और कुछ शब्दों का इस्तेमाल करो आप बताने से पहले। So don't always think like my testimony is big, like and you are unique in testimony. और ये मत सोचो कि मेरा गवाही बहुत बड़ा है और मेरा गवाही अलग है सबसे, ऐसे मत। Everybody goes to the same kind of problem, and there will be little different in coming to Christ, but everybody face the same problem in this world. और सबको कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या होती ही है और थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है और कोई ना कोई इन समस्याओं से ही वो प्रभु में आते हैं। Why I am teaching this one? मैं क्यों आपको इन बातों को सिखा रहा In हूँ। big churches also people, कलीसिया में भी लोग इस तरह की समस्या पैदा करते हैं they take all the times for the testimony. और वो पूरा समय ले लेते हैं गवाही बताने के। There are many people they don't want to share the testimony. You tell me next time I will share the testimony. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी गवाही कभी तुरंत बताना नहीं चाहते हैं। And this is the true with the church service, 2 hours, 3 hours church service. और ये जो हमारी 2 और 3 घंटों का जो चर्च की सभा होती है, Or it is true with when pastors take to one family and
tells you to share the testimony. और जब पासवान भी आपको ले जाता है किसी के घर में गवाही बताने के लिए, सुनाने के लिए, It is applicable in both the places. और दोनों जगहों पर इस तरह से ही आपको अपनी गवाही देनी चाहिए। And why I am sharing this? मैं क्यों इन बातों को बता You रहा should हूँ? be always ready to share your testimony. हमेशा अपने जीवन की गवाही देने के लिए तैयार होनी चाहिए। Any time, anywhere it's needed, you should get ready to share your testimony. कहीं पर भी कभी भी हो, आप अपने गवाही देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए।